अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड आफ्टरनून। जमात इस्लामी हिंद वुमेन डिपार्टमेंट की ओर से हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं। वी ऑन बिहाफ ऑफ जमात इस्लामी हिंद वुमेन्स डिपार्टमेंट वी वेलकम यू ऑल। आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है दो मुद्दे पे है। एक जो दिन ब दिन जो बढ़ती जा रही है ख़वातीन के ऊपर एट्रोसिटीज़, द राइज ऑफ एट्रोसिटीज़ या क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, इस सिलसिले से हम बात करेंगे। और दूसरा जो है, हम जमात इस्लामी वुमेन्स डिपार्टमेंट ने एक मुहिम चला रहे 1 महीने का। तो उस एक थीम जो है मोरालिटी इज़ फ्रीडम। इन दोनों इश्यूज़ पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे और इस इश्यूज़ को आपके सामने चर्चा करने के लिए, संबोधित करने के लिए हमारे नेशनल सेक्रेटरीज रहमतुन्निसा साहिबा और शाइस्ता रफ़त साहिबा है। अब मैं मोहतरमा रहमतुन्निसा साहिबा से गुजारिश करती हूँ कि वो अपने इन मुद्दों पे अपनी बात को रखें। Once again, welcome all of you and thank you so much for coming. There are two aspects of our presentation. One is like the wave of violence against women, and that is happening every day and increasing, and we will talk about that. And also we will be talking about its root causes we will be talking about. And then in the second part, we have prepared an action plan to address these kind of problems in the form of a national campaign. And regarding that, our sister Shaista Rafat Saiba will talk to you. So regarding the wave of violence against women, we express our deep concern over the continued harassment, growing number of sexual assaults, violence, and ever increasing cases of homicide against women and girls in India. The deeply ingrained social inequalities, misogyny, prejudice, and discrimination against women within the Indian society complicate matters, particularly when it comes to sexual violence against marginalized women, Dalits, Adivasis, minorities, and women with disabilities. This problem even worsens the situation. Incidents such as the RG Kar Hospital rape and murder case in Kolkata, and the gang rape and murder of a 14-year-old Dalit girl in Gopalpur, Bihar, the rape and murder of a Muslim nurse in Udhan Singh Nagar, Uttarakhand, and the sexual assault of 2 kindergarten girls in a school in Maharashtra, they all prove that the mindset and attitude towards women and girls in our country needs introspection. The partially released HEMA committee report in Kerala relieves the lack of safety for women even in extremely liberal workplaces like the entertainment industry. As per data from National Crimes Records Bureau and even the National Family Health Survey, crimes against women are increasing day by day, year after year. But these numbers are just the tip of the iceberg because they are based on the registered cases and reported cases. The quantum of cases that are suppressed and go unnoticed deliberately or otherwise is significantly higher, and it is beyond our imagination. Another striking aspect of this disturbing trend is personified in cases like that of Bilkis Bano. It's a typical case where we can understand that ardent struggle for justice, in spite of her ardent struggle for justice, what has happened, you all know that. So her case stands as a stark testimony to the systemic bias and insensitivity entrenched in our institutions.
the efforts of political establishments to secure the release of convinced criminals further reveals the disturbing complicity of politicians in such heinous acts. This is underscored by the recent ADR, that is Association for Democratic Reforms report, which shockingly highlights that as many as 151 sitting legislators, whether they are MPs or MLAs, they currently face charges of crimes against women. So, what are the reasons why these things are happening? We usually talk about the superficial aspects of matters, but we want to bring your attention to the underlying reasons behind. So, we strongly believe that these atrocities against women are only but a symptom of a widely spreading disease that is affecting the peace and progress of our nation. The root cause of this menace is the decline of moral values in the quest for freedom and liberty. People, seek freedom and liberty, and in their pursuit of freedom and liberty itself, the lack of moral values in society happening, and it leads to problems such as the objectification of women, sexual exploitation and abuse, widespread consumption of pornography, extramarital affairs and infidelity, increased use of alcohol and drugs, suicides, teenage pregnancy, single parenthood, not just single motherhood, single parenthood, increase in sexually transmitted infections, rise in abortions, and that too abortion of female feticide, increase in sexual violence and rape, sexualization of culture, art, breakdown of the family unit, and the normalization of immorality that is fast eroding the moral fabric of our society. Moreover, the growing influence of communal and caste-based politics, driven by the desire to subjugate and dominate certain communities and castes, is worsening the situation. Criminals and accused individuals are increasingly being portrayed as heroes, with their crimes not only excused but even celebrated. We also need to raise awareness against communal and caste hatred so that society and its norms recognize these as deeply immoral and unethical acts that require strong condemnation rather than celebration. Our youth is gripped by chaos, loneliness, frustration, and stress, which affects their productivity and progress. The worst part is, whatever was earlier considered immoral and unethical is now becoming socially acceptable. What people used to do in the darkness or hidden from the public is now being done publicly with no shame or guilt. The framing of laws in favor of immoral activities and unnatural relationships is also contributing to their rapid spread in our society. We are convinced that only by addressing this root cause and these kind of situations, we can bring out meaningful changes in society. So, what is it that we have planned and what we are going to do in the coming month, the whole month of September, and we will continue with that. Our sister Shaista Rafat Saiba, the National Secretary, will brief you. भाइयों और बहनों, आदाब अर्ज़ है। मुल्क की जो इस वक्त सिचुएशन है, ख़वातीन के ख़ास तौर पर ख़वातीन के एट्रोसिटीज़ को लेके आपने बहुत तफसील के साथ सुना। शोबे ख़वातीन जमात इस्लामी हिंद ने इन हालात में ये फ़ैसला किया है कि हम सितंबर 2024 1 मंथ लॉन्ग कैंपेन हम इस मुल्क में शुरू करने जा रहे हैं। ये इस कैंपेन का जो हमने थीम तय किया है वो उर्दू में अखलाकी महासिन आज़ादी के ज़ामिन, हिंदी में नैतिकता ही स्वतंत्रता का आधार, मोरालिटी इज़ फ्रीडम। इस तरह हम पूरे मुल्क में नेशन वाइड ये कैंपेन हम चलाएंगे और फिर इसका मकसद, इस मुहिम का मकसद लोगों में अवेयरनेस लाना, उन्हें बताना कि रियल फ्रीडम
क्या है और उसे हम कैसे मोरालिटी से जोड़ सकते हैं। सच तो यह है कि इंसान मोरल वैल्यूज़ पर अमल करके ही रियल फ्रीडम हासिल कर सकता है। इस मुहिम का मकसद बग़ैर किसी तफरीक के, किसी में डिस्क्रिमिनेशन किए बग़ैर, बिला तफरीक ज़ात, बिरादरी, रंग व नस्ल, जिन्स व मज़हब और ख़ित्ता और इलाक़ा सब के लिए बुनियादी ज़रूरियात को पूरी करने और बुनियादी हुकूक़ यानी फ़ंडामेंटल राइट्स हासिल करने के लिए जो मतलूबा आज़ादी है, जो फ्रीडम की ज़रूरत है, उसको हम यकीनी बनाना चाहते हैं। इस मुहिम के दौरान नेशनल लेवल पर, जोनल लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और लोकल लेवल पर माहिरीन तालीम, मुशीरान, दानिशवरान मिल्लत और इस मुल्क के वकला, मजहबी स्कॉलर्स, कम्युनिटी लीडर्स, इन सब अफराद के साथ हम प्रोग्राम मुनक़िद करेंगे। तलबा और नौजवानों को हकीकी आज़ादी और अखलाक़ी अक़दार यानी मॉरल वैल्यू से वाकिफ़ करवाने के लिए हम ये मुहिम चलाएंगे। हमारा मानना है कि जब तक ह्यूमन सोसाइटी में माइंड सेट चेंज नहीं होता, तब तक वो ख़वातीन के लिए, लेडीज़ के लिए, वीमेंस के लिए, महिलाओं के तई उनका व्यवहार हम चेंज नहीं कर सकते। इस माइंड सेट की तब्दीली और उनको माइंड सेट को ह्यूमन फ्रेंडली बनाना, वीमेन फ्रेंडली बनाना और एक अच्छा समाज बनाने के लिए हम ये कैंपेन इस मुल्क में चला रहे हैं, ताकि हम लोगों को इस बात से भी वाकिफ़ करवाना चाहते हैं कि रियल फ्रीडम और जो फ्रीडम का नारा इस वक्त दिया जा रहा है, दोनों में फ़र्क क्या है, ताकि वो झूठ और मॉरल वैल्यूज़ दोनों का सही तरीके पर वो पहचान कर सकें और इन मॉरल वैल्यूज़ को अवामी बहस में यानी पब्लिक डोमेन में लाने के लिए मुख्तलिफ मज़ाहब के स्कॉलर्स यानी रिलीजियस लीडर्स के साथ भी हम खुसूसी स्पेशल प्रोग्राम्स मुनाक़िद करेंगे। तो ये हमारा एक्शन प्लान है जो हम इस मुल्क के इस वातावरण को दुरुस्त करने और उसको एक सही डायरेक्शन में देने के लिए हमने तय किया है। शुक्रिया। Now we would like to launch the campaign. Regarding this one, we have written a small book also, that also we want to launch now. Now you can ask your questions. आप अपने सवालात पूछ सकते हैं। We have 2 questions. Yes. If you can mention your publication also, it will be good. I am Hassan Khanna from Afghan Daily, Malayalam Daily. There are controversy on the Malayalam film industry. You may know that. So we want to get your reaction on the controversy. And second one, do you have any idea to give any legal assistance for the victims of such issues? See, we have mentioned in our press note regarding this HEMA committee report. This is only a symptom of a deep-rooted disease. That's what we want to say. It's not just in the Malayalam industry. I think it has already started with Me Too campaign, the second phase of Me Too campaign. So many, from the entertainment industry, so many women are now coming with their own experiences and sharing it in the public. And but legal assistance and all these things, that is what we said, at every level. Social organizations, the society, religious communities, religious leaders, political leaders, our education system, if we don't bring change in every area, because this is the result of the capitalist ideology which was seeing everything in terms of loss and profit. And women's body had been used as a commodity, the commodifying of women's body, and women seen as a commodity for entertainment for everyone.
So that is where the problem, the root cause lies. So we strongly condemn what had happened, and just by the suspension or resignation of 1 or 2 persons, the problem is not going to get solved. A deep analysis has to happen. Debate should take place in the public domain, right from the parliament to the social organizations and NGOs, and long lasting results or solutions की तरफ हम जाना है. शास्त्री जी, ये जो कैंपेन है 1 मंथ, डू यू थिंक इट इज इनफ? 1 मंथ में कैंपेन पूरा हो जाएगा जिस हिसाब से आपने इश्यूज उठाए हैं ऑल ओवर इंडिया? 1 मंथ में पॉसिबल है? 1 मंथ कैंपेन का मतलब है कि हम पूरे देश का कंसर्न उस पर फोकस करना चाहते हैं कि ग्रास रूट कॉजेस क्या हैं, किस तरह से ये माइंडसेट डेवलप हो रहा है जो हमारे लिए नुकसानदेह. 1 मंथ में हम सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे देश का कंसर्न इस मुद्दे पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें क्या रिफॉर्मेशन की ज़रूरत है. आपने सुना है अभी एक्शन प्लान में कि जो भी हमारे डिफरेंट सोसाइटी के सेगमेंट्स हैं, हमने उनके साथ इंगेजमेंट के बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे हैं. हम चाहते हैं कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कॉलेज कैंपसेस में और जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनके दरमियान और जो हमारे इंटेलेक्चुअल्स हैं सोसाइटी के, और बग़ैर किसी फ़र्क के, ज़ात, रंग, मज़हब, ये फ़र्क नहीं, बल्कि पूरी इंडियन सोसाइटी को हम एड्रेस करेंगे. हम सबको इस तरफ लाएंगे कि हम जिस तरह के प्रॉब्लम्स को हम झेल रहे हैं और जिस तरह से औरतें जिस तरह एट्रोसिटीज़ का निशाना बन रही हैं, उसके कॉजेज़ की तरफ जाइए. आप ऊपर ऊपर कुछ करके हम बहुत ज़्यादा देर तक नहीं बच सकते. That's it. See, as a socio-religious organization, Jamaat-e-Islami Hind has been working against the evils in society and trying to bring goodness in society. So whatever the present problem, Maujuda, what is more prominent, that is what we have been addressing. And we have run so many campaigns in the past also. See, for us, campaigns are not just events for 1 month. 1 month we will be focusing only on this, our every cadre, and we will be bringing the attention of all people from different fields, like experts from different fields, and we will engage with them, we will discuss with them what could be the solution. And based on those findings and understandings, we will be preparing programs for future, and this has to continue. See, it is so deep rooted in the Indian society. See, earlier it was like Devdasi Jaisa systems mein, we had again this objectification and enjoying entertainment means enjoying the body of a woman. That was there right from the beginning, and now it has come to a new form, a new shape, with the support of media and capitalist society. So now we have to address it. This deep-rooted बीमारी को अगर हटाना है तो हम लॉन्ग टर्म प्रोग्राम्स की तरफ जाना पड़ेगा. लेकिन ये हमारा जो कैंपेन है, मुहिम, पूरे मुल्क को इस बात की तरफ तवज्जो देने के लिए है. We have to bring the attention of the entire country to this problem. महिलाओं के खिलाफ देश भर में जो मामले चल रहे हैं, किसी पे मामले चल रहे हैं, एक तरफ देखते हैं बंगाल में देश का झुकाव होता है, लोगों में गुस्सा होता है, लेकिन उत्तराखंड की तरफ देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता. ऐसा मिजाज क्यों बनता जा रहा है? क्या पॉलिटिकली लोग हो गए हैं जहन से? हमारा समाज भी वही हमने कहा. देखिए, हमारा मुल्क में असल प्रॉब्लम इमोरालिटी का ये है, लेकिन कास्ट सिस्टम और ये क्लास डिफरेंशिएशन, कम्युनल डिफरेंशिएशंस और मौजूदा हुकूमत किस तरह जा रहे हैं, ये सब मिलकर प्रॉब्लम्स को वर्सन करते हैं. प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रहे हैं इसलिए है कि हमने पर्टिकुलरली मेंशन किया दलित्स, आदिवासी. अगर ये जुल्म किसी हायर कास्ट, सो कॉल्ड हायर कास्ट खवातीन के ऊपर है तो उधर जल्दी हुकूमत का भी अटेंशन मिलते हैं, मीडिया का भी अटेंशन मिलते हैं. लेकिन एक दलित लड़की के ऊपर ये हो रहा है तो थैंक्स टू मेनी मीडिया नाउ एंड स्पेशली हमारा न्यू मीडियाज जो दे आर वर्किंग ऑन ब्रिंगिंग दिस प्रॉब्लम्स टू द पब्लिक अटेंशन. एंड नाउ थोड़ा सा मीडिया अलर्ट है, लेकिन फिर भी
there is a differentiation. So in every field this differentiation is there, and when it comes to addressing their cases and listening to their problems also, ये difference बहुत है. वही है फर्क. Political और communal differences वहाँ भी हमको reflect होते हैं, वहाँ भी हम देख सकते हैं. ये जो कैंपेन आप चलाने वाली है मैडम जी, तो क्या ये कैंपेन जो कॉस्ट्यूम फ्लोटिंग कैंपेन होगी, यानी सब हिंदू सिख ईसाई सब जगह जाएंगे आप, या सिर्फ मुसलमानों में जाएंगे? ये कैंपेन पूरे मुल्क के लिए है. हम इनिशिएटिव ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ हम खवातीन को ही एड्रेस करेंगे और सिर्फ हम एक मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन कर रहे हैं तो सिर्फ हम मुस्लिम तंजीम और मुस्लिम समाज को एड्रेस करेंगे, ऐसा नहीं है. सबके लिए है, सबका तवज्जो इस पे लाना है और उनको मोटिवेट करना है हर जगह हम काम करने का. मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है नॉन मुस्लिम लोकेलिटीज में भी जाएगी या नहीं जाएगी, ये पूछना चाह रहा हूँ. व्हाई नॉट, हम कोशिश करेंगे, हम जरूर जाना है हमको उन लोगों के साथ. हम सब मिलकर करने का काम है, ये हम सब मिलकर करने का काम है, सिर्फ मर्द खवातीन नहीं, मर्द हजरसी. जब ये खातून के ऊपर जुल्म होते हैं, सिर्फ ये प्रॉब्लम खातून का नहीं है, वो पूरे खानदान का है, पूरे सोसाइटी का है. ये एक मर्द ने कर दिया होगा, एक ग्रुप ऑफ मेन ने कर दिया होगा, लेकिन उसका रिफ्लेक्शन हर मर्द के ऊपर होते हैं. अभी जो केरला में हो रहा है, मैं ये कह रही हूं कि अगर गट्स है तो हमारा मर्द फिल्म स्टार्स, जो सेलिब्रेटेड फिल्म स्टार्स है, वो खड़े होकर मीडिया को एड्रेस करके बोलना है. अगर ऐसा है तो हम भी इसके खिलाफ है बोल के. एक सवाल है मेरी तरफ से. रेपिस्ट जो होते हैं ना, हमने कुछ दिन पहले देखा था कि उनका फूल मालाओं से स्वागत किया गया जब वो छूट के निकले. ये नजरिया क्या बताता है? वही हमने कहा हमारा, जी बिल्कुल सही बात आपने रखी. तो यही है हमारा हुकूमत की तरफ से रवैया, और हमारा लेजिस्लेटर्स और मैं ही जो लोग लॉ एनफोर्स करने वाला, लॉ मेकिंग वाला है, एमपीस और एमएलएस, उनमें से एज मेनी एज 151 लोग अक्यूज्ड है, कन्विक्टेड लोग है. जस्टिस की लड़ाई कितनी मुश्किल हम दंगों में देखते हैं, चाहे मुजफ्फरनगर का दंगा हो, चाहे गुजरात का दंगा हो, वहां भी देखिए घटनाएं बहुत हुई, उसके बाद जस्टिस नहीं मिल पाया. कई लोग को थाने गए, प्रोसिक्यूशन गए, लेकिन उसके बाद भी केस अपना वापस ले लिया गया दबाव में. तो जस्टिस कितना मुश्किल मिल रहा है, इसके लिए क्या करेंगे आप? जस्टिस को आसान बनाने के लिए पूरी सिविल सोसाइटी को भी, अदालतों को भी और खुद गवर्नमेंट को भी इसको श्योर करना होगा कि लोगों को जल्दी इंसाफ मिले और टाइम पे इंसाफ मिले और इंसाफ मिले. अब समझिए कि जिस तरह से हमारे कंट्री में बहुत लॉन्ग पीरियड तक केसेस चलते हैं, अदालतों में जाते हैं लोग और प्रेशर पड़ता है उन पर, पॉलिटिकल प्रेशर होता है कि वापस ले लें. तो ये सब क्या बता रहा है? हमने बेसिकली जो बात रखी हमने कि जो हमारा माइंडसेट है, वो पॉलिटिशियन हो या पब्लिक हो या फिर हमारी अदालतें हों, हम सब मिलकर क्यों आवाज़ नहीं उठाते कि जो लोग विक्टिम्स हैं उनको फौरी इंसाफ मिले. इसमें हमारे आवाज़ में ताकत पैदा करनी चाहिए और मीडिया को भी अपना रोल इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा सवालात उठाकर विक्टिम को इंसाफ दिलाने की कोशिश करना चाहिए. इंसाफ नहीं मिलना या इंसाफ देर से मिलना दोनों बराबर है, और प्रेशर डालना या फिर जो रेपिस्ट हैं उनको वेलकम करना, उनका आदर करना, ये हमारे एक सभ्य समाज का एक तरीक़ा नहीं हो सकता. हम एक तरफ सिविलाइज्ड बनने की बात करते हैं, विश्वगुरु बनने की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम इस तरह के क्रिमिनल्स को उनका आदर करते हैं, उनको स्वागत करते हैं, उनको मिठाई बांटते हैं. तो ये हमारा माइंडसेट जो है हमको चेंज करने की ज़रूरत है. इस पे सबको मिलके खूब ज़ोर से आवाज़ उठाना चाहिए. क्या गैर मुस्लिम संस्थाओं को, महिला संस्थाओं को भी आपने जोड़ने की कोशिश की है? जी, हम कोशिशें हमेशा करते हैं, उनसे हमारे ताल्लुकात हैं, उनके साथ हमारी मीटिंग्स होती हैं, उनको इस मुद्दे पर भी हम शामिल करेंगे. हमारे प्रोग्राम्स रिलीजियस लीडर्स के साथ भी हैं, डिफरेंट रिलीजन के जो लीडर्स हैं, लेडीज़ के साथ भी प्रोग्राम्स होंगे. हम इस मुल्क के दीगर सिर्फ लेडीज़ को नहीं बल्कि मर्द हजरात को भी हम मुतवज्जे करते हैं कि वो इस सिलसिले में भी आगे बढ़ें. आदि सोसाइटी पूरी कोशिश करे, यानी
जो महिला भाग है वो कोशिश करे और मर्द इसमें कोशिश ना करें तो हम पूरी तरह से कामयाब, समाज को बदलने में कामयाब नहीं हो सकते। हम सबका इस पर अटेंशन लाना चाहते हैं तो सब अपनी अपनी जिम्मेदारी अदा करें। हम अपने अपने मुकाम पर, अपने प्लेस पर, अपने सिटी में सब हम इस काम के लिए कोशिश करेंगे, तभी हम इस वातावरण में कोई पॉजिटिव चेंज लाने के काबिल हो सकेंगे। मैम, आपका कैंपेन का एग्जीक्यूशन कैसे होगा? What is the outcome that you're expecting by the end of September when the campaign will end? By the end of September, two outcomes we are expecting. One is we will be bringing the attention of everyone to this problem and what is the real cause of the problem. We are just applying an ointment on top of the wound. That is not enough. What is the cause of this wound? If your blood is contaminated, detox करना है तो detox करना है. We have to, the detoxifying process की ज़रूरत है हमारा समाज में. So we will bring attention of everyone into this, and the result, the outcome, what we are expecting is some long-term projects and programs. We will be able to तय करके आगे बढ़ सकता है. And what on the execution part? How are you going to execute it on the grassroots level? Yeah, we have already prepared the plan and we have already given trainings to our cadre, and even for writers, trainers, speakers, we have given grassroots level training and they will be deployed, and there are action plans, and we are focusing more at grassroots level. Grassroots level, they have to engage with the society and they have to go to the campuses, and there should be programs for the students and the youth, and through these activities, and we have even planned some competitions. Students and the youth and even ladies, they will be attending some competitions where they will be doing their own research and reference, and they will be presenting papers, or different forms of competitions will be there. So all these are to bring attention of the society towards this problem and the root cause of this problem. We are going to analyze the root cause of this problem. We are suggesting that if you want to get lasting freedom, that you can get only through moral values. Just like how you play a football. If you play a football, if you have to have a fair play, and if you are worthy of winning, and if you have to get the freedom to play, you have to follow the rules, right? So this is for a game, and like this, even in human life, there are certain moral values which have been taught for ages and generations by the religions and scholars, that has to be followed so that you will get lasting freedom from all chains of, see, just in the name of freedom, if somebody is saying my life, my choice, bolke, people fall into addicts of alcohol or drugs. And then what happens? They were seeking freedom, but what happens is they get enslaved or they get enchained. So this is what is happening. So this revelation we have to give to the youth. We should tell them, see, what you are seeing is not the real freedom. That is not the real freedom. All that glitters is not gold. So this attention we have to bring. So majorly it is awareness and education. Yes, yes. आप जो कुछ कह रही हैं वो वन साइड है, मेरा ख्याल है, क्योंकि आप दूसरी साथी और दूसरों से चाहते हैं, लेकिन कल रात से एक जो है डिबेट जो है वो वायरल हो रहा है काफी बिजनेस टुडे की वेबसाइट पर, और उसमें एक गुलाटी नाम की लेडी है, तो वो साड़ी पहने हुए उन्होंने अपने आप को पोस्ट किया था, जिस पर किसी ने ऑब्जेक्शन किया है कि अगर ड्रेस में मॉडेस्टी नहीं है तो फिर ये भी वजह बनती है बहुत से आपको बुराइयों की, और चाहे वो रेप हो, चाहे कोई भी चीज हो, तो उनका कहना है कि साहब, और ये काफी बहस लंबी होती चली जा रही है कल रात से। देखिए, ये ड्रेस मॉडेस्टी, क्या ये ड्रेस मॉडेस्टी के ताल्लुक से भी आपने कुछ कहा है पहले, आपकी तरफ से क्या होना चाहिए? तो क्योंकि लोगों का कहना है कि साहब इससे भड़काने वाली चीज हो जाती है, इसलिए वो साड़ी न पहने।
सी देखिए, मॉडेस्टी, ड्रेसिंग में मॉडेस्टी सिर्फ एक एस्पेक्ट है. अगर आप कहेंगे तो अगर ड्रेसिंग में मॉडेस्टी है तो पूरा प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, ये गलत है. पूरा प्रॉब्लम खत्म नहीं हो जाएगा. अभी देखिए रेप नन्हे बन्ने बच्चे के ऊपर हुआ ना, किंडरगार्टन चिल्ड्रन के ऊपर रेप हुआ. क्या वो लोग ड्रेस ठीक से नहीं पहनते, उनका ब्यूटी रिवील किया? तो ये तो एक एस्पेक्ट है, सिर्फ एक एस्पेक्ट ऑफ द प्रॉब्लम. लेकिन व्हेन वी एनालाइज द रेप accused or convicted, we also understand that they were nasha peete hai, drug addicts hai, they were not in their senses. So there are many problems. If we address just one problem and say this is the solution, ये नहीं है. mindset change करना है. mindset change करवा के ये सब चीज होना चाहिए. जिस तरह आपको हेलमेट पहनना है ड्राइविंग के लिए, अगर बाइक चलाते हैं तो आपको हेलमेट पहनना है. इस तरह हिजाब भी जब खवातीन बाहर निकलते हैं, इस्लाम कहते हैं आप हिजाब पहनना है. उसका मतलब ये नहीं है वो सिर्फ हेलमेट पहन लिया वो उस काबिल है बाइक चलाने के लिए. बाइक चलाने के लिए उनको बाइक के अंदर डीजल या पेट्रोल होना चाहिए. वो सीखना है ड्राइविंग स्कूल में जाके कैसे बाइक को चलाना, वो भी काफी नहीं है. वो ट्रैफिक रूल्स समझना है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है. तो इस तरह हर चीज को साथ मिलकर ही हमको सॉल्यूशन के तरफ जा सकता है. प्रॉब्लम रूट कॉज को एड्रेस करने का है. You said that this is one of the problems. Speaking about dressing not modestly, you briefly elaborated on that statement. You said it's one of the concerns. No, I didn't say one of the problems. This is one of the solutions. See, dressing modest होना चाहिए. We cannot, there is a slogan like oppressed if you are dressed. हम नहीं मानते हैं. If you are dressed, the Holy Quran says, in order to go out and engage in society, engage in public, you have to wear hijab. If you are sitting at home, no need. So, dress पहनना उसका मतलब ये नहीं है, ये है absolute solution. लेकिन वो भी पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन. के बाद एक कमीशन बना, उसने जो है सजेशन दिया, उसके अकॉर्डिंग जो है जेंडर स्पेसिफिक जो है बहुत ही स्ट्रिक्ट बनाए गए, 3 जज बनाए गए. उसके बावजूद भी जो ग्राफ है बढ़ता चला जा रहा है. देयर इज नो लिमिट फॉर दैट. तो क्या सोसाइटी का क्या है, रूल ऑफ लॉ जो है काम नहीं कर रहा है, क्या है? यही है मसला. लॉस एक तरफ हमारे कंट्री में कोई कमी नहीं. 1963 से एंटी डाउरी लॉ है, लेकिन क्या हो रहा है हर जगह में ऐसा ही है. तो अगर हम माइंडसेट चेंज नहीं करेंगे, हमारा मन में ये फियर नहीं डालेंगे कि अगर आप अंधेरे में, आप पकड़ते नहीं हो रहा है, आप पावर में है, आप रात के अंधेरे में ये काम कर रहे हैं, फिर भी आपको पकड़ने वाला कोई है. इस तरह का माइंडसेट अगर चेंज नहीं होंगे, बिलीफ सिस्टम चेंज नहीं होंगे, तो तब्दीली में इस तरह का मुश्किल होते रहेंगे. हाँ, इसमें एक बात मैं ऐड करना चाहूँगी कि हम समाज में क्या परोस रहे हैं हमारे नौजवानों को, ये बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है. एक तरफ हम ड्रग माफिया पूरा अपना काम करता है इस कंट्री में नौजवानों के दरमियान. फिर दूसरा पोर्न वेबसाइट्स, जिसको हमारे नौजवान, एक स्टडी के अकॉर्डिंग 73% 10 to 17 ईयर्स का नौजवान, फिर 73% नौजवान जो है सब पोर्न वेबसाइट का विजिट करते हैं. तो यहाँ से जो हमारा माइंडसेट उनको उस रास्ते की तरफ ले जा रहा है, हमको कुछ उसकी भी फिक्र करना है. तो वो एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हम सोसाइटी में क्या परोस रहे हैं, क्या चीज़ हमारे माइंडसेट को बिगाड़ रही है, उसको भी रोकने के लिए हम सबको मिलकर सोचना होगा उसको. जी, अभी लंच का जो दूसरा पार्ट है हमारा, ये हमारा हर पब्लिकेशंस अभी इस मौके पर स्पेशल इश्यूज तैयार कर रहे हैं. बुक्स, किताब बहुत सारे आ रहे हैं. ये किताब बोर्ड ऑफ इस्लामिक पब्लिकेशंस की तरफ से जो रेडियंस पब्लिश करते हैं आ रहे हैं, उसका भी एक रिलीज यहाँ होगा इंशाल्लाह.